Uh, Today we are going to talk about a new theory of international relations. Rather, it is not a new theory, rather, it is basically a perspective in international relations. And it is known as a green perspective. Uh, बहुत सारे लिटरेचर में you might have witnessed के people they usually refer it as a theory. When they usually refer it as a theory, they basically find out two different kind of variation within green theory of international relations. One is the thinking green and the other is the green thought. So here today in my class we will try to discuss green perspective as well as theory in international relations. इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू have a better understanding of the context and the origin in which this school of thought has emerged and ultimately started to influence international relations as a discipline. तो इन चीज़ों को जब हमने देखने हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले we would be trying to find out the perspective, the idea जिन्होंने इस पूरे स्कूल ऑफ थॉट को इन इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप किया. तो इसके अंदर ग्रीन पर्सपेक्टिव का ओवर वेदर यू टेक इट एज अ थेरी और पर्सपेक्टिव, जो अंडरलाइन आइडिया है, जो बेसिक असेंस है, वो ऑलमोस्ट सेम है. तो वहीं से अब हम शुरू करते हैं कि ग्रीन पर्सपेक्टिव दे बिलीव, ये जो ग्रीन्स जिनको हम कहते हैं, ये जो प्रोपोनेंट ऑफ ग्रीन स्कूल ऑफ थॉट, दे बेसिकली बिलीव के ह्यूमन जो इकनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़ हैं, they are taking place in a way that threatens the very environment, and when the environment is basically being threatened, ultimately human activity and जो economic activities हैं, they are posing a risk to the human existence on this very planet. So this is the centerline idea, whether you take it as a theory or perspective. उनका ये मानना है, they believe के whatever human activities or social activities they are happening, they are taking place in a way that threatens the very environment, and when the environment is being threatened, ultimately it is threatening the very existence of human being on this planet. तो उसके ऊपर they are basically coming up with the idea के in the last 50 years जितनी भी the number of people which are being added in the population, they are greater than the whole number of people which have been added in the population in the last 1000 years. तो 1000 साल के अंदर जितने लोग पॉपुलेशन में ऐड हुए हैं वो कहीं कम हैं देन द पीपल जिनको ऐड किया गया है इन द लास्ट 50 ईयर्स. तो वो जो इतने लास्ट 50 ईयर्स के अंदर इतनी ज़्यादा ये वाट एवर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुई है, वो उन सब का जो फोकस है, दे आर इंक्रीजिंगली फोकसिंग टू pursue higher standards of life, living beings. और ये जो human drive है, it is also resulting threatening the very environment in which the human existence is जो इंश्योर की गई है. उसके बाद वो जो क्या कहते हैं, जो पॉपुलेशन की बात करते हैं. अच्छा, ये जो बेसिक आइडिया जो मैं बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो ये है कि ग्रीन्स का मानना है, the proponent of a green perspective, they believe के whatever the human activity is happening, whatever the social activity is happening, so they are not having their direct concern with the economic activity or the social activity. Rather, they are focusing on the ways through these activities are happening, either they are social or economic in nature. These ways they are threatening the very environment. They are not concerned with the economic activity, they are not concerned with the social activity, rather they are concerned with the ways through which these activities are happening, and those ways they are posing a threat to the environment, and when the whole environment is getting disturbed, ultimately this whole planet will not be suitable for the human existence anymore. तो इसके ऊपर सबसे पहले जो उनका कंसर्न है, दैट इज़ विद रेफरेंस टू दी population, और population के अंदर they are having their idea कि in last 50 years we have produced more people than the people which are being produced in the last 1000 years. और जितने ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर लोग हैं, जितने लोग हैं वो उतने माउथ हैं, अल्टीमेटली दे नीड रिसोर्सेज के ऊपर हैं, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इन्वायरमेंट है उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है. उसके बाद दे आर टॉकिंग अबाउट दी फूड प्रोडक्शन. पॉपुलेशन के बाद दे आर टॉकिंग अबाउट फूड प्रोडक्शन. उनका ये मानना है कि ऐसा नहीं है
कि जितनी ज़्यादा तादाद के अंदर ह्यूमन बींग्स जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हुए हैं उसके हिसाब से फूड प्रोडक्शन नहीं हुई है, रादर ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हुई है, लेकिन द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज़ दिस इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में दिस इज़ अन जो फूड प्रोडक्शन है इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस वजह से क्या हो रहा है, कुछ रीजन्स के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कुछ रीजन्स में डेजर्टिफिकेशंस हो रही हैं, और फिर ये जो अच्छा अब ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या मुराद है, जिन रीजन्स के अंदर ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो रही है तो अल्टीमेटली वो भी किस वजह से हो रही है, थ्रू दी अननेचुरल मीन्स, थ्रू दी साइंटिफिक मीन्स हो रही है। पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है जो कि अंडर सॉइल जो वाटर है उसको पोल्यूट कर रहा है और पूरी दुनिया को ऑटोमेटिकली इफेक्ट कर रहा है, और फिर वहाँ पे रिसोर्स डिप्लीशन हो रही है। और जिन रीजन्स के अंदर जो फूड प्रोड्यूस सही तरीके से नहीं हो रही वहाँ पे भी लैंड को स्क्वीज़ किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट मीन्स लैंड को स्क्वीज़ किया जा रहा है इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर यील्ड एंड प्रोडक्शन। और फिर वो भी जो है जो एनवायरनमेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड स्कार्सिटी भी जिन रीजन्स के अंदर है वो भी एनवायरनमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो तीसरा मेजर जो इनका पॉइंट ऑफ कंसर्न है दैट इज़ रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल मैस प्रोडक्शन। ये जो इंडस्ट्रियल मैस प्रोडक्शन है इट इज़ रिवॉल्विंग वन प्रिंसिपल्स, आप लोगों ने लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अंदर पढ़ा था, जो क्रिटिक किया था क्रिटिकल थ्योरीज ने और स्ट्रक्चरलिस्ट ने, उनका मानना ये मान था और कार्ल मार्क्स का भी ये मानना था कि ये माइंडलेस कंज्यूमरिज्म क्रिएट कर रहा है। ये माइंडलेस जो कंज्यूमरिज्म है ये वांट और नीड के दरमियान डिफरेंस को हाईलाइट करता है और ये कहते हैं वट एवर द इंडस्ट्रियल मैस प्रोडक्शन इज़ बीइंग क्रिएटेड, ये जो क्रिएट हो रही है अल्टीमेटली इट इज़ रिजल्टिंग इन द डिप्लीशन ऑफ स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल ख़त्म हो रहा, एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर हो रहा है और इस वजह से ये जो मोटर और एयर मोटर पोल्यूशंस हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस है, ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबब बन रही है, पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है और इस वजह से ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये ना सिर्फ अंडर सॉइल जो वाटर है उसको पोल्यूट कर रहा है बल्कि एयर को पोल्यूट कर रहा है और इस वजह से दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में एसिडिक रेन्स हो रही हैं, इस डेजर्टिफिकेशंस हो रहा है, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, हाई टेम्परेचर रिजल्ट कर रहा है और ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस की वजह से जो आज हमने इन आर्डर टू गेट द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की शक्ल में ये जो हमारी ड्राइव है इन आर्डर टू गेट दी कूल एनवायरनमेंट टू लिव इन, उसके अंदर से ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं जिनको ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, CFCs जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं जो यूज़ होती हैं रेफ्रिजरेशंस के अंदर, जो यूज़ होती हैं एयर कंडीशनर्स के अंदर, जो सॉल्वेंट्स के अंदर हैं, ये अल्टीमेटली ये जो अर्थ का जो मेंटल है, जो एटमॉस्फेयर का जो मेंटल है उसके अंदर जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैसेस हैं ओजोन, उसको ये तबाह बर्बाद कर रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रही हैं। तो वो मानना क्या बेसिकली ये जो ग्रीन्स हैं, ये जो प्रोपोनेंट ऑफ ग्रीन पर्सपेक्टिव या ग्रीन थ्योरी के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रही है और ये जो फूड प्रोडक्शन है उसका जो नतीजा निकल रहा है और ये जो इंडस्ट्रियल वेस्टेजेस और इंडस्ट्रियल मैस प्रोडक्शन और उसका जो कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट जो निकल रहे हैं और ये जो CFCs जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये सारे के सारे हमारे इन्वायरमेंट को इस काबिल नहीं रख रही कि ये आइंदा फ्यूचर के अंदर ह्यूमन एग्जिस्टेंस को इंश्योर कर सके। ये बेसिकली उनका मेन आइडिया। अब लेकिन हुआ क्या विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, अभी तक वट एवर द थ्योरीज वी हैव विटनेस्ड, हमने जितने भी पर्सपेक्टिव्स पढ़े हैं उनके अंदर अब मोस्ट डोमिनेटली दो आइडिया बड़े डोमिनेटिंग थे कि वट एवर दी ग्लोबल इश्यूज दे आर एग्जिस्टिंग इधर इन द शेप ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वो या जो ग्लोबल जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबल दुनिया के अंदर वो इन वन वे और दी अदर कुड बी कैटेगराइज एज इंटरनेशनल, द इशू ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी या द इशू ऑफ ग्लोबल इकनॉमिक्स। तो इन वन वे और दी जितनी भी थेरीज हैं, आपने रियलिज्म देखा, जो लिबरल्स देखा, जो आपने स्ट्रक्चरलिस्ट देखा, फिर क्रिटिकल थेरी देखी, वो इन वन वे और दी अदर या तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी से कॉन्सिक्वेंसेस को डील करती हैं या ग्लोबल इकनॉमिक्स को डील करता है। तो ये जो ग्रीन प्रोपोनेंट्स थे इनका फर्स्ट टाइम मानना है कि इन्वायरमेंट अब थर्ड ग्लोबल इशू है जिसको थ्योराइज करना चाहिए। पहले आप लोगों ने देखा IR की जो डेवलपमेंट हुई है वो दो बेसिक क्वेश्चंस थे, व्हाई डू स्टेट्स गो फॉर वॉर
एंड व्हाट ought to be done, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनेशनल सिक्योरिटी, फिर लिबरल पर्सपेक्टिव ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकानमी के अंदर आया, फिर उसका क्रिटिक आया, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स आए। तो ये ग्रीन्स का ये मानना है, दे स्टार्टेड टू कम अप विद द आइडिया कि अब ये दिस इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। पहले जो टू मेजर ट्रेडिशनल इश्यूज थे इंटरनेशनल सिक्योरिटी का, ग्लोबल इकोनॉमिक्स का, वो पीछे हो गए हैं। वो तीसरा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट ये थर्ड मेजर इशू है जिसको थ्योराइज करने की ज़रूरत है। और ये जो ग्रीन्स हैं, ग्रीन पर्सपेक्टिव्स के जो लोग हैं या ग्रीन थ्योरी के जो लोग हैं, दे स्टार्टेड टू फोकस के हाउ ये जो इन्वायरमेंट इज़ बेसिकली ये जो प्रॉब्लमाटाइज कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस को किस तरीके से, और इसको हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस ये जो इन्वायरमेंट है इसका इशू को थ्योराइज किया जाए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है इन वन वे और दी अदर, किस तरीके से ये डायरेक्टली बीइंग इफेक्टेड ह्यूमन प्रोग्रेस से, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से या इकनॉमी के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से ये इफेक्ट हुआ है और उसको अब किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इसके ऊपर ये जो डिबेट स्टार्ट हुई है ग्रीन पर्सपेक्टिव की, ग्रीन थे। अब ग्रीन पर्सपेक्टिव और ग्रीन थेरी का तो एक अगर थेरी का तो आपको पता है एक पार्टिकुलर इशू होता है और उसके ऊपर फिर थ्योराइज किया जाता है और अल्टीमेटली उसको टेस्ट किया। व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये थेरी भी है और इसके ऊपर बहुत कम कंसेंसस है कि ग्रीन थेरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज बेसिकली एक्सिस्टिंग, बल्कि इसके ऊपर कंसेंसस ये है कि ये ग्रीन पर्सपेक्टिव है। ग्रीन पर्सपेक्टिव क्यों कहते हैं? ग्रीन पर्सपेक्टिव इसको इसलिए कहते हैं गिवन द कम्प्लेक्सिटी एंड द रेंजेस ऑफ इशू कनेक्टेड अटैच विद द एनवायरनमेंट। अब ये इसके अंदर आप जो देखते हैं कि इसके ऊपर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्फ्लुएंसेस हैं, एथिकल और मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, और फिर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके ऊपर। तो इस वजह से गिवन द कम्प्लेक्सिटी एंड द रेंजेस ऑफ इशू, इस वजह टू द एनवायरनमेंट, इस वजह से इसको कहते हैं ये ग्रीन पर्सपेक्टिव है। हम इसका एक सिंगल एरिया नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। एथिकल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से स्कूल ऑफ थॉट है जो ग्रीन पर्सपेक्टिव के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, और जनाब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग स्कूल ऑफ थॉट है। तो इस वजह से इसको लोग ग्रीन पर्सपेक्टिव के अंदर एनामोरेट करते हैं। खैर, अब अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें किस तरीके से हुआ, फिर ये हाउ दिस होल डिबेट स्टार्टेड, अब ज़रा इस चीज़ को देखते हैं ज़रा गौर से। सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने बुक्स लिखी, फिलोसफिकली पॉलिटिकली आइडियाज़ भी एक्सिस्ट कर रहे थे जो हम ओरिजिन के सेक्शन में देखेंगे। रिलीजन का भी बड़ा किरदार था, साइंटिफिक डेवलपमेंट का भी इसके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस है, एथिकल और मॉरल ऑब्लिगेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वायरमेंट का बड़ी अहम चीज़ें हैं। और इसके अलावा और जो इश्यूज़ हैं जो विच स्टार्टेड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी अगेन एंड अगेन, उन्होंने भी इसके अवेयरनेस के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। वो पहले देखते हैं, रिचर्ड कार्सन की एक बुक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1960s के अंदर बहुत मशहूर हुई, और ये कहते हैं इट वाज द फर्स्ट जोल टू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये उसको साइलेंट स्प्रिंग कहते हैं। साइलेंट स्प्रिंग के अंदर वो उसने पूरा इंडस्ट्रियल एज से लेकर आज तक की क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एनालिसिस किया, और फिर उसने बताया कि ये जो साइलेंट स्प्रिंग है, इसके उस बुक के अंदर उसका ये मानना था कि ये जो हम इन आर्डर टू गेट मोर एंड मोर हीट फ्राम द सॉइल, वो पेस्टिसाइड अकोमोलेट कर रही है और वो पूरे के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जा रहा है। अब ये जो आप लोगों ने देखा होगा, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमारी वेजिटेशन के ऊपर। और इसका मैं आप लोगों को एक बताऊं कि जब मैं एफएससी में था उस वक़्त हमारा केमिस्ट्री का एक टीचर था, उसने हमें एक असाइनमेंट दी। उसने कहा कि आप कोई भी सब्ज़ी लें, उस सब्ज़ी को आप 1 घंटा पानी में डाल दें। 2-3 सब्ज़ियाँ उस वक़्त बड़ी मशहूर थी, एक मटर थे और पालक थी और गोभी थी। हमने तीनों सब्ज़ियों को उठाया और 1 घंटे पानी में डाल दिया, और फिर 1 घंटे के बाद हमने देखा कि वो जो पानी था वो ऐसा पानी हो गया जैसे तेल आया हुआ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो वो उन्होंने हमें कॉन्शियस कहते हैं, आप लोग बाज़ का सब्ज़ियाँ खाते हैं और सब्ज़ियों के अंदर बाज़ का आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, चक्कर आते हैं, जायका अच्छा नहीं होता। तो ये पेस्टिसाइड्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है हमारी वेजिटेशन के ऊपर जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये रिचर्ड कार्सन का ये मानना था, इसलिए उन्होंने हमें एक तंबीह की
कि जब भी आप सब्ज़ी लें उसको पहले पानी के अंदर डबो के रखें एक आधा घंटा, और फिर वो पानी नितार लें, उसके बाद उसको वॉश करें और फिर उसको यूज़ करें। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं ये जनाब पूरे के पूरा जो अंडर सॉइल इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, और वन पॉइंट से ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट में जा रहा है, और इसकी वजह से जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं और जो चीज़ें हैं वो हमारे हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रहा है। तो रिचर्ड कार्सन की बुक फर्स्ट जोर्ड टू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। उसके बाद 1970s में ये एक डिबेट शुरू हुई। ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से अगर हम ग्रीन पर्सपेक्टिव को एज ए थ्योरी लेते हैं उसके अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिसको हम मोर स्पेसिफिकली कहें कि ये दो वेरिएशंस हैं इन ग्रीन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको थिंकिंग ग्रीन या ग्रीन थॉट कहते हैं। तो ये इसकी जो डिबेट है वो इस तरीके से है। 1970s के अंदर इसको माना ही नहीं जाता था कि भाई ये कोई इन्वायरमेंट भी कोई चीज़ है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये जो इसका पूरा एक पर्सपेक्टिव है लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का, एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट का, मॉडर्निटी का, और जिसके जो एक आइडिया के ऊपर बेस करती है जो ये कहती है कि ये जो नेचर है ये हॉस्टाइल है, एक्सटर्नल है और अनफ्रेंडली है, और नेचर कल्चर डाइकोटमी को हमने पीछे भी पढ़ा है। और अगर नेचर ने एग्जिस्ट करना है तो कल्चर सिविलाइजेशन नहीं हो सकती, और अगर सिविलाइजेशन और कल्चर ने एग्जिस्ट करना है तो नेचर को टेम करना पड़ेगा, नेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। नेचर को जब तक टेम नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ह्यूमन एग्जिस्टेंस इंश्योर नहीं हो सकती, क्योंकि नेचर तो बहुत वाइल्ड है, ये रूथलेस है और ये डेंजरस है टू ह्यूमन सिविलाइज। तो इस पर्सपेक्टिव में 1960s और 70s के अंदर जो भी एनवायरमेंटलिस्ट आते थे, पॉइंट ऑफ व्यू देते थे कि जो ह्यूमन जो प्रोग्रेस है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये इन वन वे और दी अदर एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है, उसको थ्रेट कर रहा है, एनवायरनमेंट को बर्बाद, स्पॉइल कर रहा है। तो उसको उस वक्त लोग दे यूज टू मेक फन ऑफ दीज पीपल, उसको कहते हैं ये हिप्पी फेड है, ये चंद मोरॉन्स हैं, कुछ ये जनाब ल्यूनेटिक हैं जो इस आइडिया से ऑब्सेस्ड हैं और ये प्रीच कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को। खैर लेकिन ये जो साइलेंट स्प्रिंग और इस तरह के जो लाइक माइंडेड पीपल थे उनकी जो पब्लिकेशंस होना शुरू हुई, अल्टीमेटली ह्यूमन कॉन्शियस डेवलप होना शुरू हुआ। तो फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन 1972 114 कंट्रीज़ ने दे पार्टिसिपेटेड इन दी स्टॉकहोल्म में कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अंदर ये डिबेट बड़े खुल के सामने आई, और ये डिबेट क्या थी? इस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर ओनली वन आइडिया दैट वाज बीइंग डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन कि ये दोनों के दरमियान एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, और यानी कि अगर वी हैव टू मेक प्रोग्रेस, अगर हमने प्रोग्रेस करनी है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अचीव करना है, और वो जो पूरा एक आइडिया है, आप लोगों को पता है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो प्रोग्रेस की तरफ लीड कर रही है, पास्ट वाज वर्स्ट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बेटर एंड अल्टीमेटली टू द बेस्ट इन फ्यूचर। ये जो पूरा आइडिया, ये माइंडसेट था, और दूसरा माइंडसेट ये था कि एनवायरमेंटलिस्ट का। और ये जो पूरी जो कॉन्फ्रेंस हुई हैं उसके अंदर एक ही चीज़ डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन, दैट वाज व्हाट, वो ये था कि भाई एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वी पीपल आर लिविंग, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको डैमेज होने से बचाना, उसको स्पॉइल होने से बचाना। अदरवाइज फ्यूचर जनरेशंस जो हैं, जिनको आज हम सोच रहे हैं कि हाउ टू से फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द स्कोर्ज ऑफ वार, उसको देन वी हैव टू थिंक, ये थर्ड जो इशू है, हाउ टू फेस द फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। उनको एक्सटिंक्शन से कैसे बचाना है कि ये दिस होल प्लैनेट इज गेटिंग बैड, पूरा एनवायरनमेंट इज गेटिंग स्पॉइल्ड, एंड नेचर जो है वो पूरे ह्यूमन बीइंग्स ने आर्टिफिशियली इसको ख़राब किया है, और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये एनवायरमेंटल फीजिबल नहीं होगा, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस विल नॉट बी फीजिबल ऑन दिस प्लैनेट, नहीं होगी। खैर उसके बाद 1960s और 70s का एक पूरा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है कि 10-15 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जितने भी दुनिया के इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स थी वो डेवस्टेशन, डिस्ट्रक्शन का शिकार थी। और वट एवर द इन्वायरमेंटलिस्ट दे वर कमिंग अप, वट एवर द ग्रीन्स दे वर कमिंग अप विद देयर एजेंडा कि भाई ये फोकस ऑन दिस, हमने एनवायरनमेंट को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, वो इस पूरे उनकी कोई बात नहीं मान रहा था, क्योंकि इसका पूरा बैकग्राउंड था कि इंडस्ट्रियल जो हब थे वो डेवस्टेशन, डिस्ट्रक्शन का शिकार थे, एंड दे वर गोइंग फॉर द रिकवरी, वो इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जा रहे थे।
और रिकवरी की तरफ जा रहे थे। और दूसरा ये कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार का स्टार्ट था, और कोल्ड वार के अंदर कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आपस से एक दूसरे के साथ इडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में थे। इडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में अल्टीमेटली जो इकॉनमी उनका में, आपको पता है कैपिटलिज्म इकनॉमिक इडियोलॉजी, कम्युनिज्म इकनॉमिक आइडियोलॉजी, जिसको फिर पॉलिटिकली और रिलीजियसली उन्होंने ट्रांसक्राइब करने की कोशिश की। क्या था बेसिकली उसका पूरा आइडिया था कि वट एवर जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट जो ग्रीन्स थे वो आ रहे थे पूरे पर्सपेक्टिव के साथ, एक आइडिया के साथ, भाई इन चीज़ों को देखो, इन्वायरमेंट को देखने की ज़रूरत है। उसके ऊपर कोई बात नहीं था। उसकी वजह ये थी कि इकनॉमिक की रिकवरी का एक स्लोगन था जिसको हर बंदा एक्सेप्ट कर रहा था और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की तरफ ये जाना चाहते थे 50-60s के अंदर। और फिर 3 किस्म की पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे थे उस वक्त। एक था कैपिटलिस्ट सिस्टम जो, और उसके ब्लॉक लाइक माइंडेड पीपल, और उसके बाद कम्युनिस्ट, और तीसरा जो नॉन अलाइनमेंट थे। जो कैपिटलिस्ट थे वो इकोनॉमिक रिकवरी के ड्राइव में थे और दे वांटेड टू हैव अर्ली एज पॉसिबल इकोनॉमिक रिकवरी, क्योंकि वो एक इडियोलॉजिकल विक्ट्री शो करना चाहते थे। दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, कम्युनिस्ट ब्लॉक जो थे वो उन्होंने लोगों के साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि वट एवर द इकोनॉमिक सिस्टम दे आर कमिंग विद, जिस इकोनॉमिक सिस्टम के साथ वो आ रहे हैं वो आपको शो करेंगे कि वी कैन मेक बेटर प्रोग्रेस, वी कैन मेक बेटर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हम ले सकते हैं। और वो इस ड्राइव में थे कि वी हैव टू प्रूव द मेटल ऑफ आवर आइडियोलॉजी हमें, और वो भी इन द कंटिन्यूस फ्लक्स ऑफ गोइंग फॉर मोर एंड मोर मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में था। और जी कोई बात कहना चाह रहे हैं? क्या चीज़ बेटा? हेलो, कौन बात कर रहे हैं? खैर एनीवे, ये फातिमा नदीम के माइक से आई थिंक के कोई था। खैर एनीवे, एंड द थर्ड जो थे, जो थर्ड पॉलिटिकल सिस्टम रखने वाले नॉन अलाइनमेंट के लोग थे, वो भी अल्टीमेटली पॉवर्टी स्टिकन थे और दे वर ट्राइंग टू गेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और वो भी दे वर विलिंग टू फॉलो दी फुट स्टेप्स, इधर वो जो कैपिटलिस्ट के मानते या कम्युनिस्ट के मानते। तो ये सारा एक इन्वायरमेंट था जिसके अंदर ये ग्रीन पर्सपेक्टिव स्टार्टेड टू इमर्ज, और कोई बंदा इसको मान नहीं रहा था और लोग कह रहे थे ये हिप्पी फेड है, और कोई बंदा इसके बिलीव करने का। लेकिन अब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है बेसिकली द डिबेट बिटवीन दी मॉडर्निस्ट एंड इको रेडिकल्स। ये सारा ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई है उसको बेसिकली इग्नाइट किया गया, ट्रिगर किया किसने? द डिबेट बिटवीन दी मॉडर्निस्ट एंड इको रेडिकल्स। अब मॉडर्निस्ट और जो इको रेडिकल्स है इन चीज़ों को समझना है कि ये मॉडर्निस्ट क्या मानते थे। मॉडर्निस्ट का ये मानना है बेसिकली, मॉडर्निस्ट कहते हैं कि थ्रू दी improvement in scientific knowledge and while getting technological competence we would be in a position to protect our environment। हम अपने environment को protect कर लेंगे किस तरीके से? through the scientific knowledge and technological competence we would be doing what? we would be getting we would be protecting our environment। मॉडर्निस्ट का ये मानना था उनका, ये उसका पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। उन्होंने कहता है वो ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एज से पहले हम डार्क एजिस में रह रहे थे और वी पीपल वर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एंड अल्टीमेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस, और आवर पास्ट वाज वर्स्ट एंड आवर प्रेजेंट इट इज़ बेटर एंड वी आर लीडिंग टुवर्ड्स द बेस्ट। हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, बेहतरीन चीज़ की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल कंपिटेंस ने हेल्प अस टू एरेडिकेट दी मिजरीज एंड द पास्ट प्रॉब्लम, इसी तरीके से वी वुड बी यूजिंग दीज नॉलेजेस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। और हमें कोई वो और किस तरीके से उनका ये मानना है कि जो हमारी पास्ट टेक्नोलॉजीज़ थी उनके अंदर ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होता था, और वो जो पास्ट टेक्नोलॉजी दे वर बेस्ड ऑन द लूटिंग एंड द प्लंडरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वट एवर द टेक्नोलॉजी दे आर बीइंग यूज्ड नाउ बाय अस, दे आर मोर एफिशिएंट। वो जो आप लोगों को बताया था कैलकुलेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं इसके ऊपर बेस करते हैं। लेस रॉ मटेरियल से वी आर गेटिंग मैक्सिमम यील्ड, और दिस इज हाउ वी वुड बी प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। ये होगा। खैर दूसरा जो था इको रेडिकल्स का मानना था। इको रेडिकल्स का मानना था कि ह्यूमन जो सोसाइटीज ऑन अर्थ हैं दे आर मूविंग वेरी डेंजरसली क्लोजर टू द लिमिट्स ऑफ दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट के ये जो प्लैनेट है इसकी, एक सेकंड ये ज़रा ना मेरा इसमें
यस, उनका क्या मानना है, इको रेडिकल्स का ये मानना है, they were of the opinion कि ये जो human societies on this very planet and they are moving very dangerously to the closer limits of planet. क्या मतलब है इसका, उनका ये मानना था कि जितना भी ह्यूमन ये जो वेस्टेज पैदा किया जा रहा है, ये बेसिकली एक, दे आर रेफरिंग टू द रिपोर्ट लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, एक रिपोर्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ 1972 के अंदर पब्लिश हुई। उसका ये मानना था, वो ये कहते थे कि ये जो एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंट soon, very soon, it would be placing restriction on the growth और ultimately it will be resulting in disaster. क्या कह रहे हैं कि ये जो इको रेडिकल्स हैं, कहते हैं ह्यूमन सोसाइटीज ऑन अर्थ आर मूविंग वेरी डेंजरसली क्लोजर टू द लिमिट्स ऑफ दिस प्लैनेट्स कैरिंग कैपेसिटी। क्या है वो, ये कहते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियल जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये दे आर इंटररिलेटेड एंड दे बोथ आर इंटररिलेटेड एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, ये क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। और इस प्लैनेट की कैपेसिटी खत्म हो रही है टू मैनेज एंड एब्जॉर्ब द वेस्टेजेस बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड द वेस्टेजेस बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड थ्रू द मोटर एंड एयर पोल्यूशन। और इस पूरे प्लैनेट का क्या हो रहा है जी, इस पूरे प्लैनेट की कैपेसिटी खत्म हो रही है और अल्टीमेटली डिजास्टर रिजल्ट होगा और ह्यूमन जो लाइफ है इस पूरे प्लैनेट से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये इको रेडिकल्स का। और वो क्या कहते हैं, फिर उनका ये मानना है, दे आर ऑफ द ओपिनियन के ये जो लोग कहते हैं कि हम वी वुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी, वी वुड बी यूजिंग साइंटिफिक मीन्स, थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक मीन्स वी वुड बी प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, हम इस अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। वो इनका ये जो इको रेडिकल्स दे वर ऑफ द ओपिनियन और दिस इज नॉट वर्केबल बिकॉज देयर इज नो सिंपल टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस। कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल फिक्स नहीं है जो ओजोन लेयर अगर तबाह बर्बाद हो गई है तो उसको रिस्टोर करें, अंडर सॉइल वाटर अगर तबाह बर्बाद हो गया उसको सोल्व करें। ये ग्लोबल वार्मिंग से कोई एक टेक्नोलॉजिकल फिक्स नहीं है एंड इट इज़ नॉट वर्केबल। व्हाट द नीड इज, क्या करना चाहिए, दे वर कमिंग अप विद देयर आइडिया कि उनका ये मानना था, इको रेडिकल्स कहते थे सबसे पहले दे केम अप विद द आइडिया कि पॉपुलेशन ये जो एक्सप्लोजन हो रही है इसको स्टॉप करना है, इसको रोकना है। और ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जब हम रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, देन अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर द चेंज इन आवर लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल को जब हम चेंज करेंगे और उस ये जो लाइफस्टाइल है जो कि रूरल टेंडेंसी से निकलकर अर्बन टेंडेंसी में आ गई है और अल्टीमेटली वी आर मूविंग अवे फ्रॉम नेचर, हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द आर्टिफिशियलिटी के ऊपर जो बेस करता है। दिस लाइफस्टाइल हैज़ टू बी चेंज। व्हेन दिस लाइफस्टाइल वुड बी चेंज अल्टीमेटली देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेचर एंड एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट अल्टीमेटली बेहतर होगा। और सेकंड एंड द थर्ड थिंग विद विच दे वर कमिंग अप विद द आइडिया, दे वर ऑफ द ओपिनियन कि क्या होना चाहिए, we have to bring structural changing in the existing political and economic systems. पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें लाने पड़ेंगी। खैर ये जो उन्होंने दो चीज़ें की हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है और चल रही है। और जो इको रेडिकल्स का वो ये कहते हैं कि जितने भी ये जो स्टेट सिस्टम चल रहे हैं, ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम चल रहे हैं और ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे रिप्लेस करने पड़ेंगे। उसी वक्त हम ये इतना रेडिकल है, इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेट सिस्टम को रिवर्स करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि स्टेट जो है ये मॉडर्न सोसाइटी की प्रोडक्ट है। इससे पहले स्टेट एज सच नहीं थी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के, और ये जो स्टेट है ये कैपिटलिज्म जो है और ये जो स्टेट है ये म्यूचुअली को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या लगा, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और इसी वजह से ग्रीन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को, ये ग्रीन पर्सपेक्टिव को कहते हैं। इन वन वे और द अदर दे आर हैविंग देयर वेरी अपील टू द क्रिटिकल थ्योरी। ये क्रिटिकल थ्योरी से भी बड़ी अपील रखते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, रिवर्सल ऑफ द स्टेट सिस्टम, रिवर्सल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करने की बात कर रहे हैं जो इको रेडिकल्स हैं। इको रेडिकल्स के ये सारी इन चीज़ों को चेंज करने की बात कर रहे हैं। और बच्चों मेरी बात समझ आ रही है, मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बातें बताई हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछ पाऊँ, थोड़ा तवक्कुफ़ करते हैं और मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। अच्छा ओके, तो ये जो सारी चीज़ें इनके ऊपर वो जो डिस्कस कर रहे थे, डिस्कशन काफ़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, चीज़ें ऐसे क्लियर होती हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद उनका क्या मानना था, फिर ये जो डिबेट थी, जो मॉडर्निस्ट और इको रेडिकल्स के दरमियान जो डिबेट थी, इसने समहाउ
चेंज, लोगों की मेंटालिटी को चेंज करना शुरू कर दिया। लोगों की अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर फिर वैसे लोग आना शुरू हुए पॉलिटिकल रैलम्स के अंदर। और फिर एक बड़ा बज़वर्ड था 1970s 1980s के अंदर जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट था ये डायरेक्टली इसी डिबेट का नतीजा है। बल्कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो माइंडसेट रखने वाले लोग थे, दे वर हैवीली बीइंग इंस्पायर्ड बाय द इको रेडिकल्स से वो दे वर हैविंग देयर distaste towards the modernist. They were also having their distaste towards the eco radicals, but they were influenced by the eco radicals. और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको उर्दू में पायदार तरक्की कहते हैं, ये बेसिकली क्या थी? अच्छा, जो अभी तक जितनी भी प्रोग्रेस हो रही थी, जितना भी प्रोग्रेस हुई है वो किस आइडिया के ऊपर थी? नेचर कल्चर डाइकाटमी। हम उसी वक्त प्रोग्रेस कर सकते हैं, सिविलाइजेशन उसी वक्त रह सकती है जब when we would be having the capacity and power to tame the wild nature, to tame the hostile nature, to tame the external nature। और ये इस नेचर का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अच्छा, इसका कुछ रिलीजियस कॉनोटेशन भी हैं। जूडाइज्म के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर दोनों तरीके से, जैसे इस्लाम के अंदर बताया गया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं ये अशरफुल मखलूक़ात हैं, सुप्रीम बीइंग है, अशरफुल मखलूक़ात है लिविंग बीइंग के अंदर, सबसे ऊपर हैं ये। और इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इको रेडिकल्स ने एक ख़ास पर्सपेक्टिव लिया, मॉडर्निस्ट ने एक ख़ास पर्सपेक्टिव लिया। ये जो इको रेडिकल्स थे, ये जो मॉडर्निस्ट थे, उन्होंने रिलीजन से ये लिया कि ये जो इंसान है ये सुप्रीम बीइंग है एंड इस्लाम इज़ बीइंग मेड टू कंकर ओवर दी नेचर, और उसको समझना है और उसको कंट्रोल करना है ओनली देन। और जो इको रेडिकल्स थे उनका ये मानना था, भाई ये इस वजह से नहीं कहा गया रिलीजन्स के अंदर कि भाई यू आर द सुप्रीम बीइंग एंड यू आर सपोज टू कंट्रोल ओवर द वाइल्ड नेचर, बल्कि इस वजह से दिया गया, इसकी एक मॉरल, इसकी एक कोनोटेशन है, एक एथिकल कोनोटेशन है। और उनका ये मानना था कि ये जो रिलीजन के अंदर इस वजह से इस चीज़ को नहीं बताया गया, बल्कि इस वजह से बताया गया कि जो गॉड है वो स्ट्रेस करना चाहता है कि माई ओमनीपोटेंस है, इसको रिकग्नाइज किया जाए और देखा जाए कि क्या पूरी यूनिवर्स मैंने बनाई है, उसको डिस्कवर करो एंड अल्टीमेटली रिकग्नाइज माई ओमनीपोटेंस, मेरी ओमनीपोटेंस को रिकग्नाइज किया जाए। बल्कि इस वजह से नहीं किया गया कि यू आर द सुप्रीम बीइंग एंड यू आर सपोज टू, यू आर बीइंग गारंटीड फॉर द एब्सोल्यूट लिबर्टी टू डू वट एवर यू आर विलिंग टू डू विद द नेचर, और नेचर को टेम करो, स्पाइल करो, बर्बाद करो और अल्टीमेटली गेट द प्लेयर प्रिंसिपल के तहत। इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से वट एवर द यूनिवर्स इज बीइंग मेड बाय गॉड, इसको डिस्कवर करो, लर्न करो एंड अल्टीमेटली रिकग्नाइज द ऑल ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड। तो इको रेडिकल्स ने ये पॉइंट ऑफ व्यू उठाया, मॉडर्निस्ट ने वो पॉइंट ऑफ व्यू उठाया, और दिस इज हाउ द होल स्कूल ऑफ थॉट डेवलप दोनों स्कूलों के अंदर। खैर, ये रिलीजन के अंदर भी ये दोनों चीज़ें और इस तरीके से भी चला। खैर, मैंने जो आप लोगों को बताना चाह रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इको रेडिकल से इंस्पायर्ड है, और वो ये कहते हैं वी हैव टू इंश्योर आवर प्रेजेंट एक्जिस्टेंस, हमें वी हैव टू मीट आवर नीड्स ऑफ प्रेजेंट, we have to meet our need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो यानी कि पहले जो नेचर कल्चर डाइकाटमी की मेंटालिटी क्या थी? लूट द रिसोर्सेज, लूट द नेचुरल रिसोर्सेज, यूटिलाइज एट विल, यूटिलाइज एट प्लेयर प्रिंसिपल, वट एवर द थिंग्स आर अवेलेबल, यू आर द सुप्रीम बीइंग एंड एवरीथिंग इज फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए जितना यूज करना है करो, वेदर दे आर गेटिंग डिप्लीटेड डजंट मैटर, डिप्लीट होता कोई बात नहीं। लेकिन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वालों का ये था कि मीटिंग द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, उनको यानी कि आज जो नेचुरल रिसोर्स एग्जिस्ट करो उसको यूज़ करो, डिप्लीट होता है ख़त्म नहीं, बल्कि इस तरीके से यूज़ करो कि तुम्हारी भी नीड्स फुल हो जाए और फ्यूचर जनरेशंस की भी नीड हो जाए। तो बेसिकली यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे दैट अलाउज टू रीन्यू और कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अदर्स, इस तरीके से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खैर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो बज़वर्ड था 1970s 80s के अंदर बड़ा मशहूर हुआ, और ये जनाब कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट की डिस्टिंक्शन से बियॉन्ड होके इट बिकेम्स अ बज़वर्ड, ग्लोबल बज़वर्ड। लेकिन इसके जो गोल्स थे, इसके जो एंड थे, वो दे वर नेवर बीइंग मटेरियलाइज, और ये इट बिकेम अ गुड पीआर टैक्टिक बन गया, ये सॉलिड मार्केटिंग मैसेज बन गया, ये क्या बन गया? एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया टू विन ओवर द सिंपैथीज ऑफ द पीपल, लेकिन द एक्चुअल गोल वाज नेवर बीइंग मटेरियलाइज्ड। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है, इसके अंदर एनवायरनमेंट को रेकलेसली यूज़ नहीं करना,
एनवायरनमेंट को एट विल यूज़ नहीं करना बल्कि रैशनली यूज़ करना है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है इन वन वे या दी अदर। खैर ये जो सारे मामला जो चल रहे थे, इसके अंदर एक और पर्सपेक्टिव था ग्रीन स्पिरिचुअलिटी का, वो भी आया। इको रेडिकल्स से जो डिस्ट्रेटिव थे, दे केम अप विद द आइडिया कि भाई ग्रीन स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज़ है। वो ग्रीन स्पिरिचुअलिटी का जो आइडिया था दैट वाज बेस्ड ऑन के द अर्थ इज सेक्रेड एंड वर्दी ऑफ केयर। अर्थ इज सेक्रेड एंड वर्दी ऑफ केयर। तो जो दुनिया के अंदर जो चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही हैं प्लेनेट के ऊपर, ये सेक्रेड हैं, इनको रेकलेसली यूज़ नहीं करना, बल्कि ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम का है। ह्यूमन बीइंग्स और जो नेचर है ये इंटीग्रेटेड है, दे म्यूचुअली ग्रो, ये म्यूचुअली ग्रो करते हैं। नेचर सर्वाइवल को इंश्योर करता है और ह्यूमन बीइंग्स नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। तो इस ग्रीन स्पिरिचुअलिटी का भी एक आइडिया था जो 1990s में बड़ा चला, खैर समहाउ बबल की तरह था, बाद में ख़त्म हो गया। और फिर ये सारी जो चीज़ें थी, तो पहले 1972 के अंदर एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई और इसके ऊपर डिबेट थी बिटवीन टू थिंग्स, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। और उसके बाद डिबेट में मॉडर्निस्ट वर्सेस इको रेडिकल्स, देन अल्टीमेटली द ग्लोबल बज़वर्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि गुड पीआर टैक्टिक बन गया, गुड पॉलिटिकल एजेंडा टू विन ओवर द सिंपैथीज ऑफ द वोटर बना, लेकिन नथिंग एल्स। और उसके जो एम्स थे कभी भी मटेरियलाइज नहीं हुए। और उसके बाद फिर 1992 के अंदर रियो कॉन्फ्रेंस हुई जिसको अर्थ समिट कहते हैं। 179 स्टेट्स दे साइंड द चार्टर, जिसको एजेंडा 21 कहते हैं। और ये जो बेसिकली क्या थे, ये एजेंडा 21 थे कि 1 2 3 4 5 21 तक, दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव क्रिएटेड टू द एनवायरनमेंट, दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव क्रिएटेड टू द एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट को हमने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं और इसको किस तरीके से देखना है। लेकिन अल्टीमेटली मेजर कंसर्न्स क्या है अर्थ समिट के अंदर कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वी विल बी गेटिंग द रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और इसके लिए जॉब्स चाहिए और उसके लिए डिफेंस चाहिए और ये वगैरह फलां ये सारी चीज़ें। खैर समहाउ अर्थ समिट कंसेंसस बिल्डिंग के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने की कोशिश की हैं, ये बेसिकली ये जो कॉन्टेक्स्ट था जिससे एनवायरनमेंट कॉन्शियस बिल्ड हुआ, और इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि इफ़ यू आर गोइंग टू टेक ग्रीन थेरी एज थेरी, यानी कि अगर इसको ग्रीन थेरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के तौर पे लेना है तो इसके ऊपर दो वेरिएशंस बड़े अहम हैं। एक थिंकिंग ग्रीन है, थिंकिंग ग्रीन का जो स्कूल ऑफ थॉट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है ग्रीन थॉट। थिंकिंग ग्रीन एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, एंड दिस थिंकिंग ग्रीन का जो है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द मॉडर्निस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको वेरिएशन के तौर पे एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म का नाम दिया गया। और जो ग्रीन थॉट था, दे वर हैविली बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इको मॉडर्निस्ट, और इको मॉडर्निस्ट दे केम अप विद द फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ द फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी जिसको इकोसेंट्रिसिज्म का नाम दिया गया। अब इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं पहले, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ तक जो चीज़ एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप हुई। पहले डेवलप हुआ रिचर्ड कार्सन की बुक थी, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ, और उसके बाद उसने एक डिबेट इग्नाइट की, जो डिबेट बिटवीन द मॉडर्निस्ट एंड इको रेडिकल्स थे, और फिर इको रेडिकल्स से इन्फ्लुएंस होकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद फिर अल्टीमेटली 1992 के अंदर रियो कॉन्फ्रेंस हुई। रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म के 179 कंट्रीज़ ने उसको एक्नॉलेज किया, और ये सारे मामलात हैं, और ये सारे मामलात हुए इस तरीके से। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वी आर गोइंग टू टेक ग्रीन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल, इफ़ वी आर गोइंग टू बिलीव इट कि ये इट इज़ अ थ्योरी है, तो वो फिर भी वो जो डिबेट है अल्टीमेटली एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म के अंदर निकली और फिर इकोसेंट्रिसिज्म के अंदर। और अगर हमने इसको समझा कि ये थ्योरी नहीं है, ये पर्सपेक्टिव है, तो गिवन द कम्प्लेक्सिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गिवन द कम्प्लेक्सिटी एंड द रेंज ऑफ इशू अटैच विद द कंटेंट, तो इसको ग्रीन पर्सपेक्टिव इन इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी अपनी डिस्कशन के अंदर आप लोगों को बताया कि क्रिटिकल ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है बेसिकली ये जो ग्रीन पर्सपेक्टिव है, ग्रीन पर्सपेक्टिव, ये इसके अंदर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हैं, इसके अंदर जनाब क्रिटिकल थेरिस्ट भी हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी हैं, और ये सारे इस वजह से क्या है कि ये जो ग्रीन पर्सपेक्टिव है, क्योंकि दूसरी जो थेरीज़ हैं उनके जो स्कूल ऑफ थॉट की जो मानने वाले जो प्रोपोनेंट हैं उन्होंने इसके अंदर भी तबाह आजमाई की है। आप लोगों को पता है ग्रीन जो क्रिटिकल थेरी किस तरीके से थी। क्रिटिकल थेरी के अंदर आप लोगों को पता है कि उन्होंने ये जो कैपिटलिस्ट प्रैक्टिसेस थी उसको क्रिटिसाइज़ किया था।
पोस्ट मॉडर्निस्ट ने आके जनाब आप लोगों ने देखा था किस तरीके से एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट और लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का पांचा किया था। और उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन स्पेसिफिक है, कुछ स्टेट्स मिलकर अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, तो ये जो इन्वायरमेंट है वो उसके अंदर है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, ग्रीन पर्सपेक्टिव भी है, जिसके अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यूज इकट्ठे मर्ज होते हैं, लेकिन सेंट्रलाइंग आइडिया ये है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और फिर एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट इश्यूज हैं, आप लोगों को पता है कि इसके अंदर एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, और जो एनिमल राइट्स हैं, ग्लोबल ग्रीन है, इस तरह के जो पर्सपेक्टिव है। तो ये दोनों स्टैंड्स भाई एक वक्त चल रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लेके चल सकते हैं। लेकिन अब जो मैंने आप लोगों को जो असल जो चीज़ बतानी है, जी जी जी, हम्म, हम्म। अगर इफ यू वी आर गोइंग टू टेक ग्रीन, नॉट ग्रीन थेरी, नॉट एज अ थेरी रादर एज अ पर्सपेक्टिव, तो उसके अंदर इन स्कूल ऑफ थॉट की जो परमिएशन है, इन स्कूल ऑफ थॉट की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, ठीक है। और अगर हमने इसको थेरी लेना है तो उसके अंदर मैंने आपको पहले बता दिया 2 स्कूल ऑफ थॉट है। ये जो चैप्टर हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है वो बेसिकली थिंकिंग ग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, क्योंकि वो इको रेडिकल्स के जो ऑप्शंस हैं वो वायबल नहीं हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ, अल्टरनेटिव मींस अडॉप्ट नहीं किए गए, और स्टेट सिस्टम की रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है। और थिंकिंग ग्रीन के अंदर रहते हुए ही हम लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जैसे लिबरल्स कहते हैं और जो अदर थ्योरीज कहते हैं, उनके तहत हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के वायबल ऑप्शंस पर गौर किया जा सकता है और उनको अडॉप्ट किया जा सकता है। तो पर्सपेक्टिव्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और भी बात करनी थी, अगर फॉर द टाइम बिंग ज़रा इस चीज़ को ज़रा रोकें, और विद रेफरेंस टू योर असेसमेंट। ओके गाइज, क्या बात कर रहे थे? एंथ्रोपोसेंट्रिसिस्ट जो हैं वो ये दे बेसिकली बिलीव के नेचर एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और ये डेड है, इसकी कोई एसेंस नहीं है। और जो इको साइंटिस्ट हैं दे बिलीव कि नहीं, नेचर हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी एसेंस है, और नेचर सेंटर्ड ये नेचर सेंटर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। और ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर नॉट अलाउड टू प्लंडर दी रिसोर्सेज रेकलेसली, रादर के उनको दे शुड फोकस, दे शुड मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द वैलिड एंड इनवैलिड नीड्स। वैलिड नीड्स क्या, बल्कि वो नीड्स को भी वैलिड और इनवैलिड के अंदर लेकर आता है। और वांट्स और नीड की तो डिस्कशन बहुत पीछे रह गई कि कौन सी वैलिड नीड है, कौन सी इनवैलिड नीड है, और वैलिड नीड को फिल करने की कोशिश करें, इनवैलिड की तरफ ना जाएं। खैर, तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि एंथ्रोपोसेंट्रिसिस्ट और इकोसेंट्रिसिस्ट, ये मॉडर्निस्ट और इको जो इको रेडिकल्स से इंस्पायर्ड हैं। और हम थ्योरी के तौर पे लें तो थ्योरी के में अंदर 2 वेरिएशंस हैं थिंकिंग ग्रीन का। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि इको रेडिकल्स बेसिकली क्या है, उनकी अजम्पशंस हैं, उनकी पास्टुलेशंस क्या हैं, बुक के अंदर लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा। पहले तो वो सारे का सारा के नेचर इज एग्जिस्टिंग फॉर दी वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, उसको रिजेक्ट करते हैं आउटराइटली, सिंगल क्लिक ऑफ पेन। और वो उनका बिलीव है कि ह्यूमन जो इंटरवेंशन है इन नेचुरल वर्ल्ड इज बेसिकली थ्रेटनिंग द वेरी सर्वाइवल ऑफ नॉट ओनली द मैनकाइंड बट आल्सो द अदर स्पीशीज एज वेल। वो जो ये ह्यूमन इंटरफियरेंस है इन नेचुरल वर्ल्ड इज बेसिकली थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड एज वेल एज द अदर स्पीशीज पूरी जो। और ये जो इको रेडिकल्स हैं वो उनका ये मानना है कि बहुत आर इंटीग्रेटेड, ये म्यूचुअली ग्रो करते हैं ह्यूमन बींग्स उसको, बल्कि ये जो एक ये जो ग्रीन्स के मानने वाले हैं, मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके ऊपर वो चीज़ डिस्कस की गई थी। उनका ये मानना था कि ये जो हम फल खाते हैं, इन फल को हमें रॉ खाना चाहिए, इन वेजिटेशंस को हमें रॉ खाना चाहिए, बिकॉज कि ह्यूमन बींग्स दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ एनवायरनमेंट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और वेजिटेशंस हैं, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन, अगर हम उसको डेड करके खाते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, ये अगर हम इनको बॉयल करके खाते हैं
तो वो जो इसकी जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो उसकी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और इस वजह से इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। और फिर वो उनका ये मानना है कि बॉयल करके ना खाओ, रॉ हैंडेड में खाओ और उनको सही तरीके से खाओ। लेकिन हमने क्या किया, पेस्टिसाइड लगा लगा के बड़ा गर्क कर दिया इन सारी चीज़ों का। और ये बेसिकली इनका जो मानना है कि ये जो ग्रीन थ्योरी है ये एथिक्स और मॉरलिटी के ऊपर बेस करती है। एथिक्स और मॉरलिटी का से क्या मुराद है कि वो ड्राइव करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ये जो दे आर लिविंग ऑन द फ्लैश ऑफ सेंटिएंट बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स दे आर लिविंग ऑन द फ्लैश ऑफ सेंटिएंट बीइंग्स। आप जानवरों को ज़िबा कर रहे हैं, आप जानवरों को खा रहे हैं। सेंटिएंट बीइंग्स कौन है? जो दोज हु आर बीइंग कॉन्शियस ऑफ पेन, जो क्राई करते हैं, जिनको पेन होती है। अब ये जो नेचुरल वर्ल्ड के अंदर मानने वाले कहते हैं कि इसके अंदर डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से ये जो अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं किस तरीके से यूज़ करना है। बनाना का बुक के अंदर लिखा हुआ, बनाना को बाइट करना है, वो सेंटिएंट बीइंग तो नहीं है। लेकिन अगर इफ़ यू आर किकिंग अ कैट तो वो सेंटिएंट बीइंग है। तो बनाना को खाना और कैट को खाने के दोनों का डिफरेंस है। तो इसके मॉरल थिंग्स भी हैं, उस चीज़ों को ज़रा देखें। दूसरा, दे इंसिस्ट ऑन दी फंडामेंटल चेंज इन सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। वो पूरे के पूरी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से ये जो इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस बने हैं उसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइज करो इनको। और सोशल लाइफ, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को चेंज करो, वो उसकी तरफ लेके जाओ। और ये इकोसेंट्रिस्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। खैर, ये जो मैंने आप लोगों की ये चीज़ें जो बता रहा था ये उनका पर्सपेक्टिव और इसके ऊपर ये सारी डिबेट चल रही थी। अब किस तरीके से मैं आप मिसाल दे के बताता हूँ कि जो सेंट्रलाइंग आइडिया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप लोगों को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, ओजोन डिप्लीट हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। और फिर क्या हो रहा है जी, और उसके बाद इंसान जो हैं पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये जो वेजिटेरियन का विद इन एनवायरनमेंट एक जो मूवमेंट है वेजिटेरियनिज्म की, वो बेसिकली क्या कहते हैं कि ये जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको ये पता नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ग्रीन हाउसेस गैसेस एमिशन हो रही है उसका 20% लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन से पैदा होती हैं। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन क्या है जी, आप लोगों को पता है। आप फ्लैश लेते हैं, मिल्क लेते हैं, आप उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, बोन्स को यूज़ करते हैं, फैट उसका यूज़ करते हैं और उनको सेल करते हैं, मीट को खाते हैं। तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है, जो एग्स लेते हैं, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पूरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जितनी भी ग्रीन हाउसेस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसका 20% है। 20% लाइफ स्टॉक प्रोडक्शंस हैं। वो मिसाल दे के बताते हैं, कहते हैं ये जो मीथेन पैदा कर रहे हैं, ये डंक की वजह से, इनकी चीज़ों से, 1/3 ऑफ द मीथेन, यानी जितनी भी मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से मैनी टाइम्स हार्मफुल है और ये लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती है। 1/3 ऑफ द मीथेन, तीसरा था मीथेन का। 2/3 ऑफ द निट्रस ऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 265 टाइम डेंजरस है, हार्मफुल है, वो भी ये लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पैदा करते हैं। और जो वेजिटेरियंस हैं, जो वेजन्स हैं, वो बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ टाइम लेस ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। बल्कि वो ये कहते हैं कि ये जो वेजिटेरियंस हैं, ये जब डेजर्ट्स को ख़त्म करके वेजिटेशंस करते हैं, ये जो फॉरेस्ट लगाते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करती हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो विद इन दी एनवायरमेंटल ये जो डिबेट है, ये जो ग्रीन्स के अंदर जो डिबेट है वेजिटेरियंस की एक बहुत है। बल्कि इन्होंने सो मच सो के थे, आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल फिलासफी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एग्लिटेरियनिज्म का, जिसके अंदर क्या है जी, पॉलिटिकल थॉट के अंदर एग्लिटेरियनिज्म क्या, ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स। कोई स्लेव नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, एवरीबॉडी इज इक्वल। ये वो डिबेट है। अच्छा, ये साउंड बैक आ रही है मुझे, किसी का कोई माइक खुला हुआ है ज़रा बच्चों? बासिम का, बासिम ये बच्चे आवाज़ बैक आ रही है मुझे, ज़रा इसको ज़रा देखो ज़रा, मैं खुद भी म्यूट कर देता हूँ आपको। ओके, तो फिर कौन सी बात थी, हम बात क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे हम बेसिकली? तो एग्लिटेरियन, तो ये जो ग्रीन्स के मानने वाले हैं, ग्रीन्स के, उन्होंने तो कह दिया कि दे केम अप विद द आइडिया कि ये जो एग्लिटेरियनिज्म है ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं है। वी बिलीव उनके एनिमल्स एंड अदर नॉन ह्यूमन लिविंग बीइंग्स जो हैं, ये भी एग्लिटेरियन का, ये जो ग्रीन्स दे बिलीव ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, वो उसको हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स।
और ये जो ग्रीन थॉट का ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अ कम्युनिटी विच इंक्लूड्स एनिमल्स एंड अदर नॉन ह्यूमन लिविंग बींग्स, उनको भी ये शामिल करते हैं और उनको इक्वल स्टेटस देते हैं उनको। ये एग्रीटेरियन का कॉन्सेप्ट इन्होंने एनिमल्स के ऊपर भी लगाया, ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी लगाया और नॉन ह्यूमन लिविंग बींग्स के ऊपर भी लगाया, जितने भी हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत बड़ा बंदा है एक पीटर सिंगर, इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त इसकी फ़िलासफ़ी की वजह से मूवीज़ भी बहुत बड़ी हैं। पीटर सिंगर ने एनिमल राइट्स के ऊपर बात की थी और वो बताता है कि ये जनाब ये जो एनिमल राइट्स को देखें आप, क्या बेड़ागरा कर दिया इन्होंने सेंटिएंट बींग्स के फ्लैश के ऊपर। कैसे हैं ह्यूमन बींग्स हैं, आपकी कोई एथिकल मॉरल स्टैंडिंग नहीं है कि आप एक सेंटिएंट बींग को किल करते हो और देन यू लिव ऑन द फ्लैश ऑफ दोज। ये सारी जो चीज़ें हैं, खैर ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा खैर, अभी तक हमने जो भी किया है, वी हैव डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस। अब इसकी ओरिजिन के ऊपर अगर हम आप लोग देखें, ओरिजिन क्या है इसकी, ओरिजिन के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इफ़ वी आर गोइंग टू टेक इट एज अ ग्रीन पर्सपेक्टिव, तो इसके अंदर साइंटिफिक इन्फ्लुएंसेस हैं, इसके ऊपर फिलासफिकल एथिकल हैं, इसके ऊपर पॉलिटिकल हैं। रेचल कार्सन, कुछ लोगों की बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिन्होंने इसकी ओरिजिन के ऊपर बड़ा अहम किरदार अदा किया। 19th सेंचुरी के अंदर अर्नेस्ट हैकल एक बंदा था, उसने फर्स्ट टाइम गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। और उनका ये कि मानना था कि ये जो नेचर है वो अलाइव है, वो फ्यूरियस है, वो लाइव है, वो सिंपैथेटिक है, वो लविंग है। और इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी थिंग्स दे आर लिविंग, दे आर इंटररिलेटेड, ये इंटररिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। तो अर्नेस्ट हैकल ने भी ये नेचर का कॉन्सेप्ट है। लिटरेचर के अंदर तो आप लोगों ने बेपनाह देखा है, शैले ने बात की इसके ऊपर, वर्ड्सवर्थ ने बात की, और यहाँ पे लिटरेचर के लोग हैं उनको ज़्यादा पता है कि हाउ द थिंग्स स्टार्टेड टू कम अप। लेकिन मैं आप लोगों से ये, जैसे कि टॉमस हार्डी का बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था, बड़ा फैसिनेट होता हूँ मैं। एक और जगह पे मैंने एक नेचर को जो मैं पढ़ रहा था, उसके ऊपर कहते हैं कि वी इन ऑर्डर टू फीस्ट आवर आइज़ वी ऑलवेज ट्राई टू टेम नेचर। हमारे घरों के ऊपर जो बाहर बाड़ हैं, जो फेंसेस हैं, उसके ऊपर जो चीज़ें लगी हुई हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू ट्रिम दैम, बट नेचर रीअसर्ट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। और आप जिस फेंस को ट्रिम करते हैं वो थोड़े अरसे के बाद रीग्रो करती है और दोबारा सामने आ जाती है, और नेचर अपने आप को असर्ट करती है। नेचर इज़ नॉट टेमेबल। और इसी चीज़ को टॉमस हार्डी ने भी लिया था कि नेचर टेमेबल नहीं है, नेचर लाइव है, सिंपैथेटिक है, फ्यूरियस है और वाइल्ड है। जैसा बिहेवियर नेचर से करेंगे वैसा ये करेगा। और फिर नेचर को जब यू ट्राई टू टेम नेचर, तो आपने देखा नहीं, अब हम लोगों ने अपनी इकानमी को लेने के लिए मैंगूस के जो जंगलात थे और अपने समुद्रों के ऊपर ख़त्म कर दिए, उस वजह से सुनामी आना शुरू हो गए। एक जगह में फ़िलासफ़ी में ये यहाँ तक मैं पढ़ रहा था कि इंसान जो अर्थ के ऊपर प्लंडर कर रहे हैं उसके नेचुरल रिसोर्सेज से, तो अर्थ का एक अपना इकोसिस्टम है अर्थ की सर्वाइवल के लिए। और वो जब डिस्टर्ब होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को एक मिसाल देके बताता हूँ, 1851 से फर्स्ट टाइम ऑयल एक्सप्लोरेशन हुई है, उसके बाद से लेकर आज तक हम ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी आर यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी पर्पसेस, उसको यूज़ कर रहे हैं। और पीक ऑफ द ऑयल इज़ इमिनेंट, नज़र आ गई है। बल्कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंट्री सऊदी अरबिया है, उसके बारे में प्रेडिक्शन है कि बाय 2050 सऊदी अरबिया वुड बी अमंग दोज कंट्रीज विच विल बी इम्पोर्टिंग ऑयल रादर देन एक्सपोर्टिंग ऑयल। तो पीक ऑफ ऑयल इज़ ऑलरेडी, वो बेल कर्व ग्राफ के अंदर देखें तो हाफ ऑयल प्रोडक्शन हमने यूज़ कर लिया, बल्कि इससे ज़्यादा भी दुनिया में ऑयल अब अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसके बारे में तो वहाँ पे एक मानने वाला था, पता नहीं उसका साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन उसका ये कहना था कि जब इंसान किसी एक ख़ास नेचुरल रिसोर्स को प्लंडर करते हैं तो उसकी वजह से अर्थ का एक इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए अर्थक्वेक्स आते हैं। यानी कि जहाँ पे नेचुरल, अब अर्थ चल के तो उन चीज़ों को फिल नहीं कर सकते जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं, तो उस जो डेफिशिएंसी है उसका अपना जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए अर्थ स्टॉर्म्स लेकर आती है। अर्थ क्या करती है? आंधियाँ लेकर आती है, अर्थ फ्लड्स लेकर आती है, अर्थ क्विक्स में इन्वॉल्व होती है, और उससे वो अपना स्टेबल रखती है। कुरान मजीद के अंदर भी एक बड़ा ज़बरदस्त है, हज़रत उमर के बारे में भी एक हमने सुना है कि
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन के ऊपर वज़न को बैलेंस करने के लिए पहाड़ों को गांठ दिया, ईंटों वो मेखों की तरह गांठा है पहाड़ ज़मीन के ऊपर, कुछ इस तरह की इंटरप्रटेशन है। और इंसानों ने क्या किया, आप देखें मरगला के साथ हमने क्या किया है, इतने बड़े बड़े इंसान ने अपने घरों के ऊपर फर्शों पे लगाने के लिए मार्बल्स और इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स एंड अदर थिंग्स मिनरल रिसोर्सेज पूरे पूरे पहाड़ उड़ा दिए। तो ये क्या हुआ, अर्थ का जो सिस्टम बैलेंस था वो ख़राब हो रहा है, जैसे कुरान मजीद में लिखा गया। और फिर उसको वो बैलेंस करने के लिए क्या करती है, यह दिखा नहीं आता अब लेक बन गई, कैसे बनी है ये अर्थ का अपना सिस्टम है उसको। ये अब ये सारी चीज़ें मैंने सुनी पढ़ी एक जगह पे, तो बड़ी अपील की है, साइंटिफिक एविडेंस पता नहीं इसका है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का नहीं है, लेकिन खैर एक पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर। क्या कहते हैं इसके ऊपर, कोई एक दो पॉइंट ऑफ व्यू ले पाऊँ अगर मैंने ये जो बात की है, कुछ कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? सदाकर क्या कहोगे तुम? हम्म, और जब इंसान पूरे पूरे पहाड़ खा जाते हैं तो हम्म, और तो उसको बैलेंस करने के लिए जो फिर अर्थ हम्म, हम्म, अर्थ फिर क्या करती है, वो आती है हम्म, 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 सही हो गया। गुड हो गया, अच्छा चलें जी। अच्छा, ये मैं जो बात जैसे अनस हैकल की मैंने बात की, उन्होंने एक इकोलॉजिकल का फर्स्ट टाइम टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी उसने, और उसमें उसने बताया था कि नेचर इज़ लिविंग, 19th सेंचुरी का ये आया था, लिटरेचर के अंदर भी बहुत सारी हैं। उसके बाद रचल कार्सन का है, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं 70s 60s के अंदर जिन्होंने ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट की विद रेफरेंस टू दी एनवायरनमेंट। उसके अंदर आपने 3 माइल्स आइलैंड था जिसके अंदर न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ था। आपने सोवियत यूनियन के अंदर देखा था, यूक्रेन में चेरनोबिल का इवेंट बहुत खौफनाक हुआ था। इंडिया के अंदर भोपाल में आपने देखा था 84 के अंदर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर एक्सप्लोजन हुआ था और गैस रिलीज़ हुई थी, और सबर्बन एरिया के बहुत सारे सैकड़ों बंदे मर गए थे। और उसके बाद क्लब ऑफ रोम्स की एक लिमिट ऑफ ग्रोथ है जो मैंने आपसे पहले बता रहा था, ग्रीन थॉट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा था कि जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं they would soon place restriction on growth and it will be leading to the disaster, ये डिज़ास्टर की तरफ लेके चले जाएंगे। और इन्वायरमेंट है, ये इंसानों की ग्रोथ रोक देंगे। आप देखें ये कोरोना की वजह से कहाँ है इंसान की ग्रोथ, ना फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, लॉकडाउन हो गए, इन्वायरमेंट कहाँ से कहाँ चला गया। उसके बाद उनका ये मानना था कि जो ये जो ग्रोथ है और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो पॉपुलेशन है, ये जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश, उसकी वजह से उनका ये मानना था कि द प्लानट इज रैपिडली रनिंग आउट ऑफ द रिसोर्सेज टू फीड पीपल एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, एंड फाइनली एनवायरनमेंट वुड एक्चुअली एब्जॉर्ब दी, जो एनवायरनमेंट की जो एबिलिटी है टू एक्चुअली एब्जॉर्ब द वेस्ट ऑफ ह्यूमन कंजप्शन एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी एंड अल्टीमेटली ह्यूमन सोसाइटी वुड बी कोलैप्स्ड। तो ये जो लिमिट्स ऑफ ग्रोथ की जो रिपोर्ट थी, इसने भी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस। और उसके बाद रिफॉर्मिस्ट स्टैंड ऑफ एनवायरनमेंट थिंकिंग के अंदर यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट है, अथॉरिटेरियन एस्पेक्ट है, एनार्किस्ट है, वगैरह वगैरह। और फिर आप लोगों को पता है रिलीजन का, मैंने जैसा पहले डिस्कस किया, फ्रांसिस बेकन ने रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को बड़ा उजागर किया। उसने कहा था कि जो गॉड की जो यूनिवर्स है, इट इज़ इंसल्ट टू गॉड कि इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेरी अर्थ और एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर, अगर उसको नहीं करते हैं तो इट इज़ बेसिकली एन इंसल्ट ऑफ गॉड। वो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर गॉड कहता है कि टू डिस्कवर द वर्ल्ड, टू डिस्कवर द यूनिवर्स, तो ये इस वजह से नहीं है कि यू आर सपोज टू टेम दैम, यू आर सपोज टू टेम दैम एंड कंट्रोल ओवर दैम, रादर
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड उनको यूटिलाइज करो, बट इन ऑर्डर टू रिकग्नाइज, इन ऑर्डर टू हैव ह्यूमिलिटी, आजिज़ी लाने के लिए कि वो समझें कि कितना बड़ा खुदा है और वो कितना ऑल ओमनीपोटेंट है वगैरह वगैरह। रेनी डेस्कार्टिस, ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म है इसकी ये फिलासफिकल जो ओरिजिन है ये रेने डेस्कार्टिस का कार्टेशियन व्यू है। रेने डिस्कार्टिस का, रेने डिस्कार्टिस बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिलासफर है, उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। उसने क्या कहा था कि एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म का जो आइडिया है वो बेसिकली कार्टेशियन पॉइंट ऑफ व्यू है। कार्टेशियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, नेचुरल वर्ल्ड इज बेसिकली अ मशीन, और जो नेचर है इट इज़ बेसिकली अ मैटर इन मोशन, और ये डेड है, इट इज़ नॉट अ सेंटिएंट बीइंग, ये सेंटिएंट बीइंग नहीं है, एंड इट इज़ एग्जिस्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ये बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के लिए, इंसानों के लिए एग्जिस्ट कर रही है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म का जो फिलासफिकल ओरिजिन है वो कार्टेशियन पॉइंट ऑफ व्यू से है, कार्टेशियन पॉइंट ऑफ व्यू, रेने डिस्कार्टिस से मैंने ये जो कह रहा हूँ। और उसने कहा था कि ये जो नेचर डेड है ये इट इज़ लाइक अ मशीन, and if we want to get benefit of it then we have to understand the principles on which this machine is working, ये मशीन किस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर चल रही है, इस चीज़ को हमने समझना है रेने डिस्कार्टिस का। और उसके बाद मैंने वेजिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू के बताया। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न फिलासफी के अंदर ही नेचर कल्चर डाइकोटमी को डिस्कस किया गया है, ये नेचर कल्चर इंटेग्रिटी को डिस्कस किया गया है, नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। जैसा कि गाया का कॉन्सेप्ट है, गाया का ये ओरिएंटल वर्ल्ड के अंदर कि जो ये उनका ये मानना है कि जो ऑल ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म हैं एंड दे आर इनऑर्गेनिक सराउंडेड जो हैं ऑन अर्थ, दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड। गाया का कॉन्सेप्ट क्या है, यही वेस्टर्न जो इको रेडिकल्स का है वो ये मानते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म, ये ह्यूमन बींग्स की नहीं बात कर रहा है, नॉन ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग की भी बात करें, ऑल ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग ऑन अर्थ हैं, दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड एंड they are closely integrated to form a single and self-regulating complex system maintaining the condition for life on this planet। गौर से समझें और ये सारी फिलासफी समझ आ जाती है। ओरिएंटल वर्ल्ड की जो फिलासफी है, हमारे रिलीजन इस्लाम के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि ऑल ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट ऑन अर्थ, दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड टू फॉर्म अ सिंगल एंड सेल्फ रेगुलेटिंग कम्प्लेक्स सिस्टम मेंटेनिंग द कंडीशन फॉर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। ये इसके ऊपर भी डिस्कस ये गई, नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो बच्चों आज हमने, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट के मुताबिक ये तो एंथ्रोपोसेंट्रिसिस का है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लेयर प्रिंसिपल्स। अथॉरिटेरियन है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इको रेडिकल्स, दे वांट टू बिलीव कि ग्रीन डेविएशन होना चाहिए, सेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी चाहिए, दैट वुड बी इंश्योरिंग हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और अनार्किस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा, इको रेडिकल्स somehow this seems very close to the anarchist। अच्छा, अनार्किज्म आप जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया है कि इसका मेन प्रोपोनेंट जिनो था। वो ये जिनो ये नहीं कहता है, वो जिनो क्यों कहता था अनार्किज्म के बारे में क्यों वो स्ट्रेस करता था, वो कहता था ये जो स्टेट सिस्टम है ये ह्यूमन लिबर्टी के अंदर सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, और इस इंसान तो आज़ाद पैदा हुआ था और इसको हर तरफ चेन में बना दिया गया, स्लेव कर दिया गया, जैसा रूसो ने भी ये कहा था। तो अनार्किस्ट जिनो का ये मैच है, तो ये इसके अंदर भी अनार्किस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रीन पर्सपेक्टिव में अनार्किस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वैलिड है। वो भी ये कहते हैं कि जो उनका ये मानना है कि स्टेट को रिप्लेस करो, क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी का, ये जो मॉडर्न सोसाइटी और स्टेट म्यूचुअली ग्रो करते हैं और इनको रिप्लेस करना चाहिए, स्मॉल लिविंग स्मॉल कम्युनिटीज़ भी होनी चाहिए, स्टेट सिस्टम को दुनिया से ख़त्म करो। और एनार्किस्ट का और ये जो इको रेडिकल्स के एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ज़बरदस्त रखते हैं। उनका ये मानना है दुनिया को जब हम ऊपर से देखते हैं, खला से, एटमॉस्फेयर से जब हम देखते हैं, तो या तो दुनिया ग्रीन नज़र आती है या हमें ब्लू नज़र आती है। और ये जो दुनिया ग्रीन नज़र आती है और ये जो ब्लू नज़र आती है, तो ये बेसिकली इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ डिस्टिंक्शन के कौन सी बाउंड्री स्टेट की है, कौन से स्टेट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो जब दुनिया का ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, स्पेस से दुनिया में ग्लोबल नज़र आती है, तो हमें इफ़ वी आर विलिंग टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, इफ़ वी आर विलिंग टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन ऑन दिस प्लैनेट,
तो हमें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इंटरनेशनल मीन्स बिटवीन टू और टू मोर देन टू नेशंस के बजाय वी हैव टू गो फॉर द ग्लोबल एज द ग्लोब, पूरी दुनिया का जो ग्लोब है, या तो वो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट बाउंड्रीज, वो स्टेट बाउंड्रीज का इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द स्टेट बाउंड्रीज और फिनिट नेचर ऑफ वर्ल्ड, बल्कि इन्फिनिट है वो, तो या तो दुनिया ग्रीन है या ब्लू है, और इस पूरे दुनिया के ग्लोबल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ग्लोबल इनिशिएटिव्स चाहिए। इसी वजह से ग्रीन पर्सपेक्टिव्स के जो लोग हैं और दे डू नॉट स्ट्रेस ऑन द इंटरनेशनल एफर्ट्स। अब जैसा कि इमरान खान ने रिसेंटली प्लांटेशंस का एक ड्राइव शुरू की थी और पहाड़ों के ऊपर बिलियन ट्री प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, तो इको रेडिकल्स का ये मानना है कि भाई एक या दो स्टेट्स जो हैं वो ग्लोबल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनसफिशिएंट है, क्योंकि हमने जितना डैमेज इसको कर दिया है, अब जितने भी हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे इन फ्यूचर ये डिजास्टर में निकलना है। अब वी आर लीडिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब एक दो स्टेट्स की एफर्ट्स दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, वो एक दो स्टेट्स की एफर्ट्स वर्क करने नहीं जा रही, बल्कि क्या करने जा रही, अब हमें ग्लोबल इनिशिएटिव्स चाहिए। और इसी वजह से ये जो ग्रीन थॉट हैं दे आर हैविंग देयर होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिकल अप्रोच ये एटोमिस्टिक यानी कि एक स्टेट की दो स्टेट्स की एटोमिस्टिक अप्रोचेस नहीं चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड इंश्योर आवर सर्वाइवल इन अपकमिंग नियर फ्यूचर, बल्कि हमें होलिस्टिकल वर्ल्ड व्यू रखना चाहिए जो बेस हो के ह्यूमन लाइफ एंड ग्लोबल इकोसिस्टम दे आर हैविंग देयर इंटीमेट कनेक्शन, ये दे आर इंटीग्रेटेड, जैसा कि गाया का जो कॉन्सेप्ट है मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये जो होलिस्टिकल अप्रोच है इकोसिस्टम का एंड जो ह्यूमन बीइंग्स की सर्वाइवल वो इंश्योर करता है लाइफ ऑन अर्थ, और जो दूसरा ये जो नेचर है वो ह्यूमन लाइफ को इंश्योर करता है। और खैर ये जो मैंने आप लोगों से बातें की हैं ये बेसिकली क्या चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रीन पर्सपेक्टिव है इसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की। एक हमने ये चीज़ डिस्कस किया कि जो ग्रीन पर्सपेक्टिव्स हैं और ग्रीन थ्योरी है। ग्रीन थ्योरी के अंदर दो वेरिएशंस हैं और ग्रीन पर्सपेक्टिव के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं। और डिफरेंट वेरिएशन से क्या मुराद है कि ग्रीन पर्सपेक्टिव के अंदर हमें नज़र आएगा कि ये जो ग्रीन थ्योरी है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिटिकल थ्योरी, इट इज़ आल्सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और इट इज़ आल्सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, और ये इसी वजह से इसको ग्रीन पर्सपेक्टिव्स कहते हैं। और ग्रीन पर्सपेक्टिव कहने की एक और वजह क्या है कि जो कम्प्लेक्सिटी एंड द रेंजेस ऑफ इश्यूज हैं that are attached with the environment वो बहुत ज़्यादा हैं, but the centerline idea क्या है? centerline idea is only one कि infinite growth is not possible in the finite resources in wake of the finite resources। और इसके ऊपर आज जो हमने फिर बाद में जो डिस्कस किया वो हमने अब इसको अगर मैं सम अप करूँ सारी चीज़ों को तो इस चीज़ें से आपने देखना है कि जो अभी तक जितनी भी जो theories they were existing, they were revolving around two issues, one था international security, the other was the global economy। इन दोनों चीज़ों के ऊपर रिवॉल्व कर रहे थे। तो जो ग्रीन पर्सपेक्टिव्स या ग्रीन्स जो थे, जो ग्रीन्स हैं उनका ये मानना है कि नाउ एनवायरनमेंट इज़ बिकमिंग अनदर रादर द थर्ड ग्लोबल इशू, जिसके ऊपर वी हैव टू थियोराइज इट एंड देन वी हैव टू इसको ना सिर्फ थियोराइज करना है बल्कि वी हैव टू फाइंड आउट द वेज थ्रू विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, अदरवाइज द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट विल नॉट बी फिजिबल। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि विद इन ग्रीन पर्सपेक्टिव टू डिफरेंट डिबेट्स फॉर एक्सिस्टिंग, one debate is related to the modernist, the other is related to the eco-radicalist। modernist वो कहते हैं through the scientific knowledge and through the technological competence we would be protecting our environment। we are moving towards the alternative source of energies, solar energy की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स को कम करें, when जब हम इसको कम करें तो we are moving towards what less emissions of क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट को एयर पोल्यूशन को कास्ट कर रहे हैं।
फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ये डिबेट हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद फिर जनाब इसको एंथ्रोपोसेंट्रिसिस्ट और फिर इकोसेंट्रिसिस्ट के अंदर हमने देखा। फिर लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि एक जो मेन वेरिएंट है थिंकिंग ग्रीन, और दूसरा वेरिएशन है इसके अंदर ग्रीन थॉट। ग्रीन थॉट इको रेडिकल्स हैं, वो लाइफस्टाइल को, वो सोशल लाइफ को, वो इकोनॉमिक लाइफ को, वो पॉलिटिकल लाइफ को रिप्लेस करना चाहते हैं विद द न्यू सेट ऑफ वैल्यू सिस्टम, न्यू सेट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम, और ये बड़ा रेडिकल्स हैं। और जो थिंकिंग ग्रीन है वो इसी थ्योरी के अंदर रहते हुए इसी थ्योरी के अंदर यानी कि इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए दे आर लुकिंग फॉर दी अल्टरनेटिव वायबल ऑप्शन थ्रू विच दे वुड बी प्रोटेक्टिंग देयर एनवायरनमेंट। अच्छा, अब थ्योरेटिकली अगर हम इस एनवायरनमेंट इशू को देखें तो हम इसको कहाँ रिप्लेस करेंगे थ्योरेटिकली? तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, जैसा कि रियलिस्ट थे, जैसा कि लिबरल्स थे, जैसा कि न्यू मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने उनका ये मानना है देयर इज नो नीड ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बल्कि वो इसी इशू को अपने ख़ास अंदाज में इंटरप्रेट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो लिबरल्स, जो पहली जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थी, जो लिबरल्स थे, उनका ये मानना है कि इफ़ बिकॉज ऑफ द मोटर एंड एयर पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ and because of the human social and economic activity, if environment is getting spoiled, it is becoming bad. तो in order to जैसा कि in order to protect this environment and to ensure our survival and future, हमें क्या चाहिए? We need to have what? We need to go for the again our basics. Basics क्या थे? Functionalism का. Two or more than two states, they would be cooperating, they would be facing problems through cooperation, they would be resolving their problems, and then their every area would be integrated through cooperation. A spillover effect would be happening, and this is how the whole world would be turning into a prosperous world. तो उनका ये मानना है, लिबरल्स ये कहते हैं, there is no need of coming up with a new theory of international relations. Rather, if we want to protect our environment, again we need to have what? Global cooperation, and cooperation would be initiated through the automatic वो जो क्या कहते हैं holistic approach के ज़रिए होना है, automatic approach के ज़रिए नहीं होना। ये जो वो ये बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो ये कहते हैं कि automism is not required, holism is required, और इसके लिए ग्लोबल कॉपरेशन की ज़रूरत है। तो लिबरल्स ग्रीन पर्सपेक्टिव को इस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रियलिस्ट हैं, रियलिस्ट ये कहते हैं एनवायरनमेंट इज़ अगेन अनदर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एनवायरनमेंट की वजह से इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, एनवायरनमेंट की वजह से इंट्रास्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। तो एनवायरनमेंट जो है इट इज़ बेसिकली अनदर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, or it could be added to another to already existing a long list of problems between two or more than two states. तो वो इस तरीके से देखते हैं। IP स्कॉलर्स के जो हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी की ये जो थ्योरी है, IP थ्योरी है विद इन ये जो इसका पार्ट है ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी जो ब्रांच है इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसके जो स्कॉलर्स हैं they basically see environment as a basic concern of global economy. वो उस ग्लोबल इकानमी के ऊपर देखते हैं, वो ग्लोबल इकानमी की शक्ल में इसको देखते हैं कि मेजर कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और ग्लोबल इकानमी है। तो उसको किस तरीके से देखा जाएगा, वो जो मैंने आप लोगों को बताया था हॉब्सियन ग्रीन हॉब्स स्कूल ऑफ थॉट, जो मैंने आपको बताया था कि वो इससे इन्फ्लुएंस है। क्या था कि अथॉरिटेरियन स्टैंड ऑफ एनवायरमेंटलिज्म जो है वो बेसिकली हेजमॉन्स को रेफ़र करता है, और वो ये कहता है कि ग्रीन लेविएथन होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज पावर होनी चाहिए जो नेचुरल जो इकोनॉमिक कंपटीशन है उसको रोकेगी और पूरी दुनिया के अंदर पीस एंड ट्रंक्विलिटी लेकर आएगी थ्रू दी वन ग्लोबल ऑर्डर। वो रियलिस्ट वर्जन उसका अलग से एक्सिस्ट करता है, लिबरल वर्जन अलग से एक्सिस्ट करता है, लेकिन समहाउ ये जो ग्रीन लेविएथन का जो एस्पेक्ट है विद इन रियल स्कूल ऑफ थॉट इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी के जो स्कूल ऑफ थॉट में वो इस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया था
कि ये इसके बाद ये जो न्यू मार्क्सिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहते हैं कि भाई हम तो पहले से कह रहे थे कि ये जो जैसे कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि जो उसका फर्स्ट फेज ऑफ फिलासफी है उसने कह दिया था कि भाई दिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैज़ टेकन अस अवे मच अवे फ्रॉम नेचर, और इनसेंसिटाइज कर दिया है ह्यूमन बिहेवियर, जो नहीं रह गया, उसकी मॉरल असेंस और वर्थ ख़त्म हो गई है। ह्यूमन बींग्स दे आर बेसिकली टेकन एज एन इनपुट ऑफ द सिस्टम, और उस जो सिस्टम है वो बोर्जी क्लास का है, दे वांटेड टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट फ्रॉम दिस ह्यूमन सर्विसेज एंड लेबर, और उस कोई वर्थ नहीं है ह्यूमन बींग्स की, तो वो ऑलरेडी इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम क्या कहाँ है, प्रॉब्लम कि जितनी भी जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल थेरीज हैं वो बेसिकली फोकस कर रही हैं, जैसा कि रियलिस्ट करते हैं जो एनवायरनमेंट को फोकस करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स, वो इस चीज़ को बेसिकली रेफ़र करते हैं। उनका ये मानना है कि वाटर एनवायरनमेंट की वजह से वाटर स्कार्सिटी का इशू बड़ा अहम है, और ये इंट्रा स्टेट हैं, जैसा कि दुनिया के अंदर जो रिवर नाइल है वो 8 to 13 स्टेट्स के दरमियान उसका वाटर शेयर होता है, तो इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है। अब जैसा कि जो इंडस रिवर है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का सबब है, तो वाटर स्कार्सिटी है, तो वो ये कहते हैं इट इज़ बेसिकली अनदर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एनवायरनमेंट की वजह से वट एवर इज बीइंग क्रिएटेड बेसिकली अनदर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, और जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेगा। और ये लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है इन थेरीज के साथ, जिसकी वजह से इट इज़ बेसिकली बीइंग थॉट नेसेसरी के देयर मस्ट बी अनदर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। वो ये है, वो ये कहता है कि जो इन्वायरमेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंट्रा स्टेट हैं, और इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो बड़ी खूबी से उसको डील कर रही हैं। रियलिज्म वाले भी देख रहे हैं, लिबरल्स भी देख रहे हैं, न्यू मार्क्सिस्ट भी दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, वो ये कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है ये इंट्रा स्टेट के साथ इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं विद इन स्टेट्स, और ये विद इन स्टेट्स के जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पाकिस्तान के अंदर ही देख लें इंट्रा स्टेट है, इंडस रिवर के वाटर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के दरमियान कितना कॉन्फ्लिक्ट है, नया डैम नहीं बनना देना चाह रहे, और ये इसको एथनिक प्रॉब्लम बना दिया गया है, लैंग्वेज का बना दिया गया है, और अल्टीमेटली ये जो इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एनवायरनमेंट की वजह से ये दे आर गोइंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स, ये बियॉन्ड द बॉर्डर्स जा रही हैं, और फिर अल्टीमेटली रीजनल इंस्टेबिलिटी का सबब बनते हैं, और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट का जो ख्वाब है वो ख़त्म हो रहा है। ये जो इंट्रा इन्वायरमेंट की वजह से इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर काम बड़ा किया था एक बंदा था थॉमस हॉमर डिक्सन ने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था, और इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ये कंसिडर किया गया कि जो इको रेडिकल्स हैं वो ये इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोचेस तो इंट्रा स्टेट देखते हैं, इंट्रा स्टेट तो नहीं ना देखते, इंट्रा स्टेट का तो नज़र आ रहा है, तो इंट्रा स्टेट को कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए थेरीज नहीं है, और ट्रेडिशनल थेरीज तो दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू डील विद दी इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, विद इन स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को देखने में काबिल के लिए सूटेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें नई थीरीज बनानी चाहिए। तो इको रेडिकल्स के ऊपर जिसको मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रीन थॉट जिसके ऊपर पूरा फुल फ्लेज स्कूल ऑफ थॉट बना, वो इसके ऊपर बेस करता है, इसके ऊपर इको रेडिकल्स के ऊपर इंटरेस्टेड, इस वजह से इट वाज डीम्ड नेसेसरी टू कम अप विद द असम्पशंस ऑफ अ न्यू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और फिर जो इस चीज़ के ऊपर बेस करते हैं वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ग्रीन थ्योरी एग्जिस्ट करती है, ये पर्सपेक्टिव नहीं है, ये फुल फ्लेज थ्योरी भी है, और इसकी अपनी बेसिक असम्पशंस भी हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये जितना भी अभी आज हमने डिस्कस किया, ये इसका कॉन्टेक्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, और फिर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड इफ it is not a theory and if we are going to take it as a green perspective, तो उसके अंदर how green perspective is being influenced by the wide range of complex issues as well as the influence of the other existing theories of international relations on environmental school of thought, इसके ऊपर है। तो इसके ऊपर अगर आप लोगों ने कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चन करना है, प्लीज़ लेट मी नो, तो फिर हम आगे डिस्कस चलते हैं। अदरवाइज कोई बात करना है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो। उनका ये मानना है कि ग्रीन पर्सपेक्टिव क्रिटिकल थ्योरी से इन्फ्लुएंस है, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं
कि ये पोस्ट मॉडर्निस्ट भी है, क्योंकि ग्रीन जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बेसिकली लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो बेसिकली मॉडर्निटी प्रोजेक्ट को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, एनलाइटनमेंट को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि जब इन चीज़ों को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं तो पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी ग्रीन पर्सपेक्टिव में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद फिर इन्वायरमेंट के फेमिनिस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बल्कि लोग कहते हैं कि ग्रीन पर्सपेक्टिव हैविली बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय green perspective heavily is being influenced by the feminist point of view and green theory, critical theory rather, critical theory से influence है। तो इसलिए ये इसके अंदर क्योंकि there is a influence of the various school of thought, इस वजह से इसको green perspectives कहते हैं, it is not a theory। और जो लोग कहते हैं नहीं भाई कि जितनी existing theories हैं वो इंट्रास्टेट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, इंट्रास्टेट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करते, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फुल फ्लेज थ्योरी चाहिए। क्योंकि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं दे रिमेन अनएबल टू फोकस ऑन दीज प्रॉब्लम्स। वो इंटरस्टेट तो देख रहे हैं, इंट्रास्टेट नहीं देख रहे, तो इसके लिए हमें नई थ्योरी है। तो उसके ऊपर फिर डिबेट आई है जिसको मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ़ वी आर गोइंग टू टेक ग्रीन थ्योरी एज अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसके अंदर दो वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक है थिंकिंग ग्रीन का और एक है ग्रीन थॉट का। और जो ग्रीन थॉट है वो इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय जैसा कि मैंने आपको बताया इको रेडिकल्स का। वो कहते हैं रिजीम चेंज और टोटल ये जो वी हैव टू रिवैम्प आवर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ओनली देन वी वुड बी close to nature and we would be integrated with nature and nature would be acting with sympathy with us and this is how we would be ensuring our survival। और जो मॉडर्निस्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं वो थिंकिंग ग्रीन्स का हैं, वो कहते हैं वाइल लिविंग विद इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए वाइल यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस एंड साइंटिफिक नॉलेज वी कैन स्टिल प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट। तो थ्योरी भी एग्जिस्ट कर रही है स्कूल ऑफ थॉट के तहत और ग्रीन पर्सपेक्टिव्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है यूसुफ, मेरी बात समझ आई? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर पर्सपेक्टिव के तौर पे रहते हो तो उसमें ठीक है, आपकी बात ये है। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, जो इको रेडिकल्स में, इको रेडिकल्स के अंदर भी जो मॉरल और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं कि वन लिविंग बीइंग जो है इट इज़ लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, दे आर लिविंग ऑन द फ्लैश ऑफ द अनदर सेंटिंग बीइंग, जो वेजिटेरियन का स्टैंड है विद इन इको रेडिकल्स का कि इनका एनिमल राइट्स को भी हमें देखना चाहिए, तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू एथिकल है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मॉरल है, तो इको रेडिकल उनको भी स्पेस देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एथिकल और मॉरल ऑब्लिगेशन को विद पर्सपेक्टिव फिक्स नहीं कर सकते, वो इको रेडिकल्स भी उसको अकोमोडेट करते हैं। लेकिन इसको थ्योरी और पर्सपेक्टिव के दरमियान इस वजह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक तो कम्प्लेक्सिटी एंड द रेंजेस ऑफ इश्यूज हैं कि we are not going to fix our attention on one particular aspect and then we are going to theorize and we are supposed to come up with the assumption, नहीं, इस वजह से इसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। एक तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ इश्यूज हैं एंड द रेंजेस ऑफ इश्यूज, और दूसरी बात यह है कि अदर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है जैसा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं और जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उनके अंदर भी ग्रीन पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है सेपरेटली। और इस वजह से वो ये कहते हैं कि क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हैं, दैट्स वाई वी कैन नॉट टर्म इट एज अ फुल फ्लेज थ्योरी। एथिकल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इको रेडिकलिस्ट के अंदर भी है। तो वो जो इको रेडिकलिस्ट का जिसको ग्रीन थॉट हम कहते हैं,
जो एक सेकंड वेरिएशन है, वो भी एथिकल और मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू को इक्वली वेटेज देता है जितना पर्सपेक्टिव के अंदर दिया जा रहा है। लेकिन पर्सपेक्टिव और थ्योरी की डिस्टिंक्शन हम इस वजह से कर रहे हैं कि रेंजेस ऑफ इश्यूज, complexity of issues and the influences of other perspectives on green thought, इस वजह से हम इसको सेपरेटली फुल फ्लैज थ्योरी नहीं कह रहे। यो साहब मेरी बात समझ आइए, ये पॉइंट ऑफ व्यू जिसकी वजह से, या और कोई बात करना चाह रहे हैं प्लीज लेट मी नो। या है सेकंड ओपिनियन होता है बंदो, बताओ अगर कोई और सेकंड आइडिया आपके जहन में आया, कोई बात कहना चाह रहे हो तो प्लीज लेट मी नो। नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, गुड